We have been joined by Samir Rahman, journalist from Dhaka, क्योंकि आप सबको पता है कि इस वक्त भारत ने जो क्रिकेट में सियासत मचाई हुई है, अब उससे सिर्फ पाकिस्तान अफेक्ट नहीं हो रहा है, बांग्लादेश ने लेकिन अब ये कि एक हार्ड स्टांस ले लिया है। तो समी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके समी, मुझे बताइएगा कि कल हमने देखा कि एक क्रिकेट की वेबसाइट पे आर्टिकल आया कि जी आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया है बांग्लादेश की इस प्ली को कि उनके मैचेस शिफ्ट किए जाएं। व्हाट्स द करंट अपडेट ऑन दैट एंड बीसीबी का क्या अब तक स्टांस आया है सामने? Well, now the things have went beyond the grip of BCB as the government has interfered. The sports advisor of the interim government, Mr. Asif Nazrul, he has said yesterday that it is now the matter of national pride, it's now the matter of national prestige that Bangladesh will not travel to India because there is a security threat concerning the players. As you know, that Mustafiz was ejected from the IPL because there has been some protests regarding his inclusion in the team owned by a Muslim actor, Shah Rukh Khan, who owns the Kolkata Knight Riders franchisee. Therefore, some leaders of BJP and some other far-rightist Hindu parties, like their leaders, they have termed Shah Rukh Khan as traitor and they demanded his exclusion. Absolutely. And therefore, Mr. Devjit Saikia, the secretary of BCCI, he has ordered that the franchisee should remove Mustafizur Rahman. So that sparked the controversy, and now the government has said that to travel a national team to some other country, the team needs a permit called government order. Now they will not issue the government order in favor of Bangladesh cricket team to travel in India. Right. So now it looks like there are going to be two options that Bangladeshi government is going to be having. One option is either India assures them full security and foolproof security for all the Bangladeshi players, or otherwise Bangladesh backs off from their inclusion in T20 World Cup if they have to go to India. So in that case, ICC can put some sanctions and fines too. So is BCB aware of all of this? Ready for that? Right. The problem is it's not only the matter of the 15 players who is traveling to India as the national team or the support staff. As the advisor said yesterday, that it's the matter of all the journalists who will go there to cover the entire tournament, the spectators who might visit. As of now, India has not given the tourist visa to Bangladeshi citizens. They're only giving few medical visas and business visas, but tourist visa is off from India. And also Bangladeshi High Commission, they have also stopped some of their deputy high commissions in some parts of India. But the point is, the government is concerned about the security of all the traveling journalists, the support staff, the other people who might go to see the matches point, in Sami, Kolkata. that you have pointed out that it's not about the cricketers only, but it's the whole staff. Please stay with us. Meanwhile, Awais, can I add something? Like, as you know, a few days back, a woman was lynched by some of the people in Orissa, suspecting she's from Bangladesh, but actually she was from Murshidabad. Yes. So that's the case now. That is the ugly part. Oways, मैं कल एक बार फिर ना, we as journalists we have to listen to all the voices. तो एक बार फिर विक्रांत गुप्ता साहब की एक गुफ्तगू सरफेस हुई जिसमें वो फरमा रहे हैं कि बाकी सब बोर्ड्स का तो मसला नहीं है, पाकिस्तान जो है ना वो सब पे प्रेशर डलवा रहा है कि बांग्लादेश तुम ऐसे करो, श्रीलंका तुम ऐसे करो, फला ढिमका तुम ऐसे करो। सुना सुना नहीं लग रहा है ये कि कोई बोर्ड किसी दूसरे मुल्क पे प्रेशर डलवा रहा है? देखिए, एक चीज तो क्लियर कट हो चुकी है कि जिस तरीके से इंडिया मैनिपुलेट करता है गेम को, खाली आप तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर आप देख रहे हैं। कल कोई, मैं एक हमेशा बात करता हुआ था कि आज हमारे साथ हो रहा है, कल कोई किसी मुल्क के साथ होगा। फर्क सिर्फ पता है कि शायद जो इनके जो चाचे हैं ना, जो बिग 3 की हम बात करते हैं, जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा ना, तब जाके होश आएगी ज्यादा कि आखिर हो क्या रहा है। एक चीज तो क्लियर कट की बात थी, क्योंकि मेरे साथ कल भी हमारे शो के अंदर एक बांग्लादेश के वो जर्नलिस्ट मौजूद थे, तो वो ये भी यहाँ तक डिस्कस कर बता रहे थे कि जो वीजाज हैं, जो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट हैं, उनको भी प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। जो टीम की सिक्योरिटी वो तो
दूर की बात है जनरल पब्लिक को भी आप इजाजत नहीं दे रहे, बल्कि टूर्नामेंट्स के अंदर आपके पास एक कोटा सिस्टम होता है जिसमें आप हर चीज उनको सहूलियात प्रोवाइड करते हैं। अगर आप थोड़ा सा रियलिटी के ऊपर आप आए तो इस चीज पे आप भी एग्री करेंगी, मैं भी करता हूँ कि इस वक्त आईसीसी का जो चेयरमैन है वो आरएसएस आइडियोलॉजी का बंदा बैठा हुआ है जो कि बीसीसीआई का रहा है। वो कभी जिंदगी में नहीं चाहेगा कि मैं अपने ही मुल्क के खिलाफ एक्शन लूं। सबसे बड़ा सबूत, जब आपने हाथ नहीं मिलाया था पाकिस्तान के साथ टीम के साथ, क्या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? क्या पूरा पेंडोरा बॉक्स खोला गया? कुछ भी नहीं खोला। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे। ये लीग सिस्टम में इतना, एक क्रिकेट लीग जिसको दुनिया के अंदर हो रही है ना, आप सिर्फ चले IL-T20 की आप बात कर लें, सिर्फ डेजर्ट वाइपर्स जो कि इंग्लैंड की कंपनी है उसके अंदर आपको पाकिस्तानी सारे नजर आते हैं। बाकी किस टीम के अंदर आपको पाकिस्तानी बंदा नजर आता है? मैनेजमेंट तक का नजर नहीं आपको आएगा। आप साउथ अफ्रीका लीग के अंदर बात करें, आपको मैनेजमेंट तक का बंदा आपको नजर नहीं आएगा। मैं लीग्स के साथ काम करता हूँ, लिटरली होता है बैकडोर के ऊपर, जब वो प्रोफाइल देखते हैं कहते हैं अरे तो पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है, सॉरी हम आपको कैरी नहीं कर सकते। आपने खुद स्पोर्ट्स को मैनिपुलेट किया है। जो ये सारी सूरत हाल बनी है, चलें क्रिकेट के अंदर तो आप चुदराहट अपनी दिखाते हो क्योंकि ब्लैकमेलिंग वाला मामला है। ओलंपिक्स के लिए आप बिड कर रहे हैं, इंडिया आपको शायद इसका कोलंबिया 2027 में जो ओलंपिक्स की बिडिंग करनी है इसने, ओलंपिक्स से डिफरेंट बॉडी है। वो सारी की सारी जितनी भी साल दो के अंदर जो चीजें हुई होती हैं उसको वो कहीं ना कहीं देख रहा होता है कि यार उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना हुआ। लड़कियां जाती हैं वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया की खेलने, वहां पर इशू होता है इंडिया में, आपको पता है उसके ऊपर, इंडिया उसका इल्जाम भी प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया टीम पे लगा देता है। उसके बाद मेसी वाला इवेंट होता है आपके सामने, कितना वो बुरे तरीके से फ्लॉप होता है। ओलंपिक की बात करें, मुझे लगता है वो अब सोचने पे मजबूर जरूर हो जाएंगे। वहां पर तो प्लेयर ही अपना सेफ नहीं है, सपोर्ट स्टाफ सेफ नहीं है, तो इतना बड़ा इवेंट इनको हम कैसे दें? इस चीज के ऊपर बांग्लादेश का जो स्टांस अभी तक रहा है वो बहुत तगड़ा रहा है। मसला सिर्फ इस चीज का आता है कि बहुत कम टाइम बच चुका है। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश ट्रैवल नहीं करता, पूरा का पूरा आपको पता है स्केड्यूल रीस्केड्यूल होना भी इस वक्त मुश्किल है क्योंकि वो अनाउंस हो चुका हुआ है। दूसरा, डीमेरिट पॉइंट्स भी कुछ कटते हैं, आई डोंट नो 3 कटते हैं 4 कटते हैं, फाइनेंसिस का आपको पता है डेंट ठीक ठाक पड़ता है, तो ये बहुत सी चीजें आपको सोच के करना पड़ता है। तो आई गेस बीच का रास्ता फिर यही होता है कि आप प्रॉपर उनको सिक्योरिटी जो उनसे है वो रिटर्न आप प्रोवाइड करते हो आईसीसी को कि हम प्रोवाइड करेंगे, बांग्लादेश टीम यहाँ पर खेल रहे हैं। क्योंकि अगर आप बैकआउट करते हो तो मैंने कहा ना कि उसका बैकफायर वाला मामला भी जो उनसे वो स्ट्रांग होता है आईसीसी की तरफ से। लेकिन अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट जो मकरू चेहरा इंडिया का वो पूरी दुनिया को नजर आ गया। एटलीस्ट इसको हाईलाइट तो करना चाहिए ना, इसको हाईलाइट तो करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। और अब सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, दीगर ममालिक भी इसकी जद में आ रहे हैं। Sami, I would like to ask you another question, but will it be possible for you to speak in Urdu for us? My Urdu is not that good. मैं थोड़ा बोल सकता हूँ अगर enough That's great. चलेगा That's चलेगा। व्यूअर्स से उसको अगर तकलीफ ना हो मेरा आवाज जी, से, जी, तो sure, मैं sure, बोल sure। सकता हूँ। बस यही जानना चाहेंगे आपसे कि मेरा पहले भी सवाल यही था कि क्या बांग्लादेश उन सैंक्शंस के लिए, उन फाइन्स के लिए रेडी है? और अगर ऐसा होता भी है कि सैंक्शंस और फाइन्स की तरफ जाना चाहता है, तो क्या बांग्लादेश फिर भी ये डिसीजन लेगा कि वो भारत नहीं जाएगा? अभी तो बांग्लादेश की सरकार ने यही डिसीजन ले लिया कि वो भारत पे खेलने में नहीं जाएंगे, वो कोई दूसरे मुल्क में खेलना चाहता है, इसीलिए वो आईसीसी को एक खत भी लिखा है। लेकिन आईसीसी ने उस खत के रिप्लाई में जो लिखा है, जो यस्टरडे वो खत आया, ईमेल आया, आईसीसी ने बोला कि उसकी छानबीन में ऐसा कोई सिक्योरिटी थ्रेट उसको नजर नहीं आ रहा है, जो बांग्लादेश ने जो सिक्योरिटी थ्रेट का माहौल किया। लेकिन बांग्लादेश का गवर्नमेंट का जो कहना है कि अब ये नेशनल प्राइड का मैटर बन चुका है कि मेरे एक खिलाड़ी को आईपीएल से निकाला गया, उसको सिक्योरिटी अपने इंश्योर नहीं कर सका, तो ये 15 प्लेयर और उसके सपोर्ट स्टाफ में जो जाएंगे और जो पत्रकार लोग जाएंगे उसको सिक्योरिटी का क्या हाल होगा, इसीलिए वो नहीं भेजना चाहते हैं। किसी भी हालत में वो बांग्लादेश का टीम को और सपोर्ट स्टाफ को और उसके साथ ट्रैवलिंग जो जर्नलिस्ट है सबको वो इंडिया में खेलने जाके नहीं, वो गवर्नमेंट ऑर्डर इशू नहीं करेंगे, वो दूसरे मुल्क में वो गेम शिफ्ट करना चाहते हैं, ऐसे वो खत लिखा है। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया अवैस एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम ढाका। समी, यू वर खूब भालो, थैंक यू सो मच, प्लेजर। तो जनाब ये क्रिकेट के मामलात और देखते हैं कि कैसे अनफोल्ड होते हैं। और मुझे सादिया, इससे वर्ल्ड कप आगे जाता हुआ या कुछ खतरे में तो लग रहा है, बिकॉज जो स्टांस कंट्रोवर्शियल तो मेरे ख्याल में फैसल हो गया है, और मेरे ख्याल में भारत का जो एक अगली फेस है वो भी इसमें निकल कर सामने आ गया है। अभी नहीं तो मे बी इन अनदर इवेंट, बट दिस इज गोइंग टू ओपन अप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।